انبیاء کرام کو سوالن جواباً، سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب۔ نمبر 26، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال اور جواب، یہ پارٹ 2 ہے۔ سوال ہے، نزول قرآن یعنی پہلی وحی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل آمین کو اقرا کے جواب میں کیا بتایا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے، 30ویں پارے کی سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ سوال ہے، نزول وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لانے کے بعد حضرت خدیجہ سے کیا فرمایا تھا؟ جواب ہے، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت خدیجہ کو نزول قرآن کا واقعہ سنایا اور فرمایا، خدیجہ، میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے، تو انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ جواب ہے، انہوں نے کہا تھا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندروہگین نہ کرے گا، آپ عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، ناتواں، بے کسوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں دیتے ہیں، مہمانوں کی توازہ کرتے ہیں، مصائب میں حق کے معاون و مددگار ہیں، آپ صادق القول ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نزول وحی کا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ جواب ہے، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں زمانہ نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کتنی سال تک جاری رکھی تھی؟ جواب ہے، تقریباً 3 سال تک۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعوت اسلام سن کر پہلے ہی دن کس کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ۔ سوال ہے، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلامی سینٹر کس کا گھر تھا؟ جواب ہے، حضرت ارقم بن ارقم کا گھر، یعنی دارالارقم۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت ملنا نزول قرآن کی ابتدا ہونے کے درمیان کتنا عرصہ وقفہ رہا؟ جواب ہے، 6 ماہ کا بشارت ربیع الاول میں ملی تھی اور نزول قرآن کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کے لیے اپنے خاندان کی دعوت کی اور فرمایا، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا، تو کس نے اٹھ کر بے دھڑک کہہ دیا تھا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا؟ جواب ہے، حضرت علی بنت ابو طالب نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اسلام کا پیغام سنایا تو تقریر کے خاتمے پر کس نے شور مچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے۔ سوال ہے، ان ملعون بازاروں کے نام بتائیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جواب ہے، عکاظ، ذل المجاز، ذل المجنہ، یعینہ۔ سوال ہے، حرم کعبہ میں عین سجدہ کی حالت میں جب عقبہ بن ابی معیط نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچنا شروع کیا تو کس نے اسے دھکا دے کر پرے ہٹایا تھا؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استہزاء زو مزاح کرنے والی 25 رکنی کمیٹی کا سربراہ کون تھا؟ جواب ہے، آپ کا چچا ابو لہب۔ سوال ہے، اس کافر کا نام بتائیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والی کمیٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ آپ کو شاعر، کاہن یا دیوانہ کہنے سے مطلب حل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کہا جائے کہ ان کا کلام باپ بیٹے، بھائی اور شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ سوال ہے، ولید بن مغیرہ نے۔ سوال، اس مشہور کافر کا نام بتائے جو بڑا دانا تھا اور قریش کا نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت سن کر مسحور ہو گیا اور ناکام واپس چلا گیا؟ جواب ہے، عتبہ۔ سوال، جب کافروں کے دباؤ سے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ بھتیجے، بت پرستی کو رد نہ کیا کرو ورنہ میں بھی تمہاری کچھ حمایت نہ کر سکوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر
ला कर रख दे तब भी मैं अपने काम से न हटूंगा और खुदा के हुक्म में से एक हुर्फ भी कम व बेश न करूंगा, खा उस काम में मेरी जान भी जाती रहे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन सी मुकम्मल सूरत नाजिल हुई थी? जवाब है सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान बनु हाशिम के ख़िलाफ़ कुरैश ने मुक़ातिआ का एक मुआहिदा लिखा था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे ख़ानदान समेत सहाबे अबी तालिब में महसूर होना पड़ा था। उसका लिखने वाला कौन था? जवाब है मंसूर बिन अकरमा। सवाल, बनु हासिम के मुक़ातिआ का जो मुआहिदा कुरैश ने लिखकर खाना काबा के दरवाजे से लटकाया था, उस दीमक के खा जाने की खबर सबसे पहले किसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को दी थी? जवाब है खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपको उसकी इत्तला दी थी। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा और कौन था? जवाब है ज़ैद बिन हारसा। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का तबलीगी सफ़र कब किया था? जवाब है 27 सवाल 10 नबी 619 ईस्वी में। सवाल, ताइफ में गुंडों के हाथ से जख्मी हो जाने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद के साथ उतबा और राबिया के बाग में पनाह ली तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ भेजी थी और किसके हाथ भेजी थी? जवाब है अंगूरों के चंद गोशे अपने रूमी गुलाम अद्दास के हाथ से। सवाल है, रबिया और उतबा के रूमी गुलाम अद्दास ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद मिनट तक गुफ्तगू करने के बाद क्या किया? जवाब है इस्लाम कबूल कर लिया। सवाल है, ताइफ से बाहर जब पहाड़ों का फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे तो मैं उन पहाड़ों को उठाकर ताइफ के लोगों पर गिरा दूं ताकि ये तबाह हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या जवाब दिया? जवाब है नहीं नहीं, उम्मीद है अल्लाह ताला उन्हीं में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक खुदा की इबादत करेगा। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हुई थी? जवाब है 27 रजब 10 नबूवत बरोज़ दोसुम्बा पीर का दिन रात के वक्त। सवाल है, मेराज के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब है 51 साल 9 माह। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा पर 5 नमाज कब फ़र्ज़ हुई थी? जवाब है मेराज की रात 27 रजब दब 62। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर सबसे पहले नमाज पढ़ने वाला कौन था? जवाब है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा। सवाल है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के बाद ईमान लाने वाली चंद खातिन के इसमाए गिरामी बताई। जवाब है हज़रत उम्मे ऐमन, हज़रत उम्मे फ़ज़ल, अब हज़रत अब्बास की अहलिया, हज़रत आसमा बिनते अबू बकर, हज़रत उम्मे जमील, हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब, हज़रत उमर की बहन। सवाल, उस काफिर का नाम बताइए जो कहा करता था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको झूठा नहीं कहता, लेकिन जो बातें आप कहते हैं उन्हें मानने को तैयार नहीं हूँ। जवाब है अबू जहल। सवाल, मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों पर किस किस नबी से मुलाकात की थी? उनके अस्माए गिरामी बताइए और आसमानों का नंबर भी बताइए। जवाब है पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सवाल है, बैत उक़बा ओला में कितने अफराद थे? उन्होंने कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी? जवाब है उसमें 12 अफराद शामिल था। उन्होंने ज़िल हिज्जा 52 मीलाद 1262 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल किया था। वो मदीना शरीफ से हज के लिए आए थे। सवाल है, बैत उक़बा सानिया में कितने आदमी शामिल थे और उन्होंने कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था? जवाब है उनमें 75 अफराद शामिल थे और उन्होंने ज़िलहिज्जा 53 मिलाद यानी 1362 में इस्लाम कबूल किया था। सवाल है, बैत उक़बा सानिया के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कौन से मर्द शामिल थे? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, हालांकि वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। सवाल है, बैत उक़बा सानिया के मौका पर जब अंसार मदीना में से एक साहब ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा तो ना होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुव्वत इक़्तिदा हासिल हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर अपने वतन वापस तशरीफ़ ले जाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरा जीना और मेरा मरना तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा खून मेरा खून है, तो तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूँ। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को यसरब मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त कब मरहमत फरमाई थी? जवाब है बैत उक़बा सानिया के बाद। सवाल है, उस पहले शायर का नाम बताइए जो मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान मजीद की चंद आयत सुनकर मुसलमान हो गया था। जवाब है तफ़ील बिन उमरो दोसी।
सवाल है, तीसरे पारे की सूरह अबस के हवाले से उस नाबीना सहाबी का नाम बताइए जिनकी आमद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त पसंद आई जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर सरदारों से गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन पर अल्लाह पाक की तरफ से तंबीह आ गई थी। जवाब है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। सवाल है, अरब के उस मशहूर पहलवान का नाम बताइए जिसने नबूवत के सबूत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कश्ती लड़ने का मुतालबा किया और 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कश्ती में पछाड़ दिया था। सवाल है, रकाना। सवाल है, कुछ अरसा तक वही बंद हो जाने के बाद जब लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने शुरू कर दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और कुफार की तरदीद में कौन सी सूरत नाजिल हुई थी? जवाब है सूरह अल ज़ुहा, जिनमें फरमाया गया है कि ऐ नबी, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सिफा पर खड़े होकर कब पहली बार लोगों को अल्लाह पाक का पैगाम सुनाया था? जवाब है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था, फसदा बमा तुमर, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता उसे खुले बंदो कहिए और मुशरिकों की परवाह न कीजिए। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि कोहे सिफा के पहाड़ों वाज का खुलासा क्या था? जवाब है, आकबत की फिक्र करो और ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाओ। सवाल है, जब कुफार मक्का ने तंजो तशीग के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा छिलनी करने की पूरी कोशिश की तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली दी थी? जवाब है, ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर उन मजाक उड़ाने वाले पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही है जिसका वह मजाक उड़ाते थे। उनसे कहो, ज़रा ज़मीन में चल कर देखो कि झुठलाने वाला कौन है या कौन झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। सवाल है, कुफार मक्का के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इनाम 10-11। सवाल है, कुफार मक्का के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गलत प्रोपेगेंडे का बाहर से आने वाले लोगों पर क्या असर पड़ा? जवाब है, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आशना हो गया। बहुत से लोग जिस्तजुए अहवाली के लिए मक्का में आने लगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम गिरामी दूर दूर तक लोगों को मालूम हो गया। सवाल है, अबू लहब की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़मूम कहकर गालियाँ देती थी। एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको गालियाँ देती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया था? जवाब है, फरमाए, अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों के सब शितम गाली गलौज से यूँ बचाया कि यह मज़मूम को गाली देती है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम काबा में कुरैश को सबसे पहले वो कौन सी सूरत सुनाई थी जिससे मुतासिर होकर मुखालिफिन बेइख्तियार सिजदा में गिर गए थे, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस भी हुआ था? जवाब है, सूरह अल नजम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मकाम नखला में सूरह रहमान सुनकर जिन जब अपनी कौम में वापस गए तो उन्होंने क्या कहा? जवाब है, हमने एक अजीब कुरान सुना है, वो सीधा रास्ता दिखाता है, तो हम उस पर ईमान ले आएँ और हम हरगिज़ किसी को अपने रब का साझी नहीं ठहराएंगे। सवाल है, बताइए 2 माह का वो कौन सा सफ़र है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में तय किया था, फिर वापस तशरीफ़ ले आए थे? सवाल है, मस्जिद अल हराम खाना काबा से बैतुल मुक़द्दस तक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में तय किया था। सवाल है, हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाशरा करने वाले मुखालिफिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल था, उनका नाम बताइए। जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब। सवाल है, हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर क्यों सुलाया था? जवाब है, ताकि बाद में लोगों की वो अमानत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे उन्हें वापस करके मदीना पहुंच जाए। सवाल है, मक्का मुकर्रमा से निकलकर हिजरत की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर खड़े होकर मक्का से आखिरी बार दर्द मंदारा खिताब फरमाया था? जवाब है, हजूरा के मुकाम पर। सवाल है, कुरैशियों के उस खोजी का नाम बताए जो उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में उन्हें गारे सोर तक लाया था? जवाब है, करज़ीन अल कमा खज़ाई। सवाल है, अल्लाह पाक ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गारे सोर के दहाने पर क्या कर दिया था? जवाब है, मकड़ी ने जाला तन दिया और कबूतरी ने अंडे दे दिए, और जब खोजी वहां पहुंची तो ये देखकर उन्हें यकीन हो गया उस गार के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। सवाल है, गार सोर में जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खोजियों को गार के मुंह पर देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान खतरे में देखकर उन पर सख्त इस्तेराब तारी हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब है, फरमाया, अबू बकर, तुम्हारा ख्याल उन 2 आदमियों के मुतालिक क्या है जिनमें तीसरा अल्लाह है?
اور پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال ہے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ، سوال ہے غار سور میں کتنا عرصہ تک رہے؟ جواب ہے 3 دن رات تک۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کب ہجرت کی تھی؟ جواب ہے 27 سفر شب 53 میلاد 1362۔ سوال ہے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ جواب 53واں سال ختم ہو کر 54واں سال شروع ہو گیا تھا۔ سوال ہے غار سور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف کب روانہ ہوئے؟ جواب ہے 1 ربیع الاول 1262 بروز دوشنبہ پیر 16 دسمبر 622 عیسوی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد قبا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 8 ربیع الاول 53 میلاد 1362 مطابق 23 دسمبر 622 بروز دوشنبہ دوسرے دن بعثت کا 14واں سال شروع ہو رہا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ کو کب روانہ ہوئے؟ جواب ہے 12 ربیع الاول 1 ہجری 1462 بروز جمعہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھایا جانے والا پہلا جمعہ کون سا تھا؟ جواب ہے جو 12 ربیع الاول 1 ہجری و مطابق 27 دسمبر 622 عیسوی کو بنو سالم کی بستی میں پڑھایا گیا تھا اور جس میں تقریباً 100 مسلمان شامل تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے قریش نے کیا انعام مقرر کیا تھا؟ جواب ہے 100 اونٹ۔